ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ موسم بہت خراب تھا۔ اچانک سے تیز چلتی ہوا نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز چلتی ہوا آندھی کی شکل اختیار کر گئی تھی اور پھر اچانک سے مٹی پر پڑتی ہوئی بارش کی چند بوندوں سے موسم خوشگوار ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہلکی بارش طوفانی بارش کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ حماد ہسپتال سے گھر کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ ایک دم سے طوفانی بارش نے پورے اسپتال کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ حماد کا گھر جانا بہت ضروری تھا۔ حماد 32 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے فارغ ہوا تھا اور اب مزید وہ اسپتال میں نہیں رک سکتا تھا۔ حماد نے جلدی سے اپنی گاڑی نکالی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ حماد کو راستے میں سے کچھ ضروری سامان خریدنا تھا، اس لیے وہ ذہن میں سوچتے ہوئے جا رہا تھا کہ مجھے کیا کیا سامان لے کر جانا ہے۔ گھر میں راشن عموماً ختم ہو چکا تھا، اس لیے حماد آج کچھ راشن بھی خریدنا چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ تیز طوفانی بارش میں آہستہ آہستہ گاڑی چلاتا ہوا مارکیٹ کی طرف جانے لگا۔ موسم نے ایک دم سے آسمان پر اندھیرا سا کر دیا تھا۔ حماد موسم کی آنکھ مچولی دیکھتا ہوا اپنے سفر پر گامزن تھا۔ حماد نے سب سے پہلے کچھ ضروری سامان خریدنے کے لیے ایک مارکیٹ کے سامنے اپنی گاڑی روکی۔ حماد مارکیٹ کے اندر گیا اور جا کر کچھ ضروری سامان خرید لایا تھا۔ وہ کیا جانتا تھا کہ جس راستے پر وہ چل رہا تھا اس راستے پر بہت بڑی مصیبت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس بات سے بالکل ہی انجان تھا۔ اسے بس گھر پہنچنے کی جلدی تھی، کیونکہ وہ گھر پہنچ کر چند گھنٹے سکون کی نیند لینا چاہتا تھا۔ لگاتار اتنی لمبی ڈیوٹی کرنے کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ حماد نے مارکیٹ میں سے ضروری سامان خریدا اور گاڑی میں سامان رکھتے ہوئے دوبارہ سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ حماد نے موسم کے حساب سے گاڑی میں گانے لگا رکھے تھے اور ساتھ دھیمی دھیمی آواز میں گنگناتا ہوا اپنا سفر تیزی سے طے کرتے جا رہا تھا۔ تبھی حماد کی اماں کی کال آئی۔ حماد نے فوراً سے پہلے اپنی اماں کی کال اٹھائی اور بہت ہی اچھے انداز میں اپنی ماں سے بات کرنے لگا۔ حماد کی اماں جو کہ ملتان شہر میں رہائش پذیر تھی، حماد سے اس کے سارے دن کے روٹین کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے اپنی 32 گھنٹوں کی ڈیوٹی کا ایک ایک لمحہ شیئر کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں 32 گھنٹوں کی ڈیوٹی کرنے کے بعد اب رہائش گاہ پر جا رہا ہوں۔ حماد کی اماں نے محبت سے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کرو، کھانے پینے کا بھی صحیح سے خیال رکھا کرو۔ کام کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم اپنا خیال رکھنا بھول جاؤ۔ تبھی حماد کے ابا نے اس کی اماں سے فون پکڑتے ہوئے حماد سے بات کرنا شروع کی، جو کہ حماد کو بری طرح سے ڈانٹ رہے تھے۔ حماد کے ابا اس سے کہہ رہے تھے کہ میں صبح سے تمہیں کال کر رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ فون اٹھانا گوارا نہیں کرتے۔ حماد مسکرا رہا تھا اور ہنستے ہوئے اپنے ابا سے کہہ رہا تھا کہ آپ پریشان مت ہوا کریں، میں اس وقت اپنی ڈیوٹی پر تھا اور آن ڈیوٹی مجھے فون سننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میری ہاؤس جاب چل رہی ہے، ایسے میں تھوڑا سا بھی فری نہیں ہوتا۔ ابھی بھی میں بہت تھکا ہوا ہوں اور اپنی رہائش کی طرف ہی جا رہا تھا۔ کچھ سامان لینے کے لیے گاڑی سے نکلا تھا کہ تبھی میں نے اماں کی کال دیکھی تو فوراً سے پہلے کال اٹھا لی۔ حماد اپنے ابا کو تسلی دے رہا تھا اور سمجھا رہا تھا کہ میں جب ڈیوٹی پر ہوتا ہوں تو بہت مصروف ہوتا ہوں، جیسے ہی میں فارغ ہوا کروں گا میں آپ سے خود رابطہ کر لیا کروں گا۔ حماد کیونکہ اپنے ماں باپ سے دور ایک الگ شہر میں رہائش پذیر تھا۔ لاہور شہر میں حماد اپنی ہاؤس جاب سر انجام دے رہا تھا۔ وہ مہینے میں 1 یا 2 دفعہ اپنے اماں ابا سے ملنے ملتان جایا کرتا تھا۔ حماد اپنے ابا سے بات کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا کہ تبھی حماد کے ابا نے اسے پیار سے سمجھایا کہ تم تسلی سے گاڑی چلا کر گھر پہنچو۔ گھر پہنچ کر فریش ہو کر کچھ دیر کے لیے اپنی ماں اور مجھ سے بات کر لینا، تم سے بات کر کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ وہ کہا لگا کر ہنسنے لگا تھا اور اپنے ابا سے کہنے لگا ٹھیک ہے ابا،
मैं जैसे ही रिहाइश पर पहुंचूंगा, फ्रेश होते ही सबसे पहले आप दोनों से बात करूंगा। अभी वो कॉल बंद करने ही वाला था कि अचानक से हमाद ने जोरदार ब्रेक लगाई। तभी कॉल काटते हुए हमाद ने जब सड़क पर देखा तो गौर करने पर हमाद को पता चला कि सड़क के दरमियान में कुछ है। तूफानी बारिश की वजह से हमाद को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हमाद ने गाड़ी से नीचे उतर कर देखना चाहा। वो गाड़ी बंद करते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी के सामने जा खड़ा हुआ। हमाद ने सड़क के बीचों बीच एक खूबसूरत औरत को गिरे हुए देखा था। उसने जैसे ही उस औरत को देखने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए तो वो ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो औरत हामला थी। वो पूरी तरह से तूफानी बारिश के साथ भीग चुकी थी। हमाद ने जब उसको देखा तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। अस्पताल क्योंकि काफ़ी दूर था, इसीलिए हमाद ने उसे अपने घर ले जाने का फ़ैसला किया। जैसे ही उसने उसे उठाकर अपनी गाड़ी में डाला और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाता हुआ अपने घर पहुंचा तो उस औरत की हालत गैर हो चुकी थी। हमाद ने जल्दी से ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को अलग कमरे में सुला दिया। जब सुबह उस लड़की को होश आया तो उसने हमाद की तरफ देखते हुए इल्ज़ाम लगा दिया कि हमाद ही उसके होने वाले बच्चे का बाप है। हमाद ने जब उस लड़की के मुंह से ये अल्फाज सुने तो वो गुस्से से नीला पीला होने लगा। उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए जैसे ही हमाद ने उसे घर से निकालना चाहा तो उस लड़की ने हमाद के कान में एक ऐसी सरगोशी की जिसे सुनते ही हमाद के होश उड़ गए थे। हमाद एक खूबसूरत नौजवान लड़का था जो कि एक बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। हमाद के बाबा जो एक वेटनरी डॉक्टर थे, हमाद की मामा गवर्नमेंट की टीचर थी। ऐसे हमाद के बाबा और मामा दोनों मिलकर घर को चला रहे थे। हमाद उनका इकलौता और लाडला बेटा था। उसको बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक़ था। पढ़ाई में बचपन से ही हमाद बहुत तेज़ था। तभी उसकी मामा ने हमाद को आला तालीम दिलवाने का सोचा। उसकी माँ ने हमाद का दाखिला एक बहुत अच्छे स्कूल में करवाया था। वो अपनी क्लास में हर लिहाज से नंबर 1 पर था। शुरू से ही हमाद को पोजीशन हासिल करने का बहुत शौक़ था। वो अपनी पढ़ाई को लेकर बेहद संजीदा रहता। फिर सब टीचर्स हमाद की तारीफ़ें करते नहीं थकती थीं। हमाद खुश अखलाक होने के साथ साथ मेहनती भी था। हमाद के बाबा जब भी हमाद से पूछते कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहोगे, तो हमाद हमेशा अपने बाबा को मुस्कुराते हुए जवाब देता कि मैं बड़ा होकर एक बहुत अच्छा सर्जन बनना चाहूँगा। हमाद के पूरे ख़ानदान में ना तो कोई इतना पढ़ा लिखा था और ना ही किसी के शौक़ और ख्वाब इतने बुलंद थे। हमाद के बाबा जब हमाद के मुंह से डॉक्टर बनने की बात सुनते तो खुशी से फूले न समाते थे। वो अपनी बीवी से कहते कि हम दोनों कोशिश करें तो हमाद को आला तालीम दिलवा सकते हैं। हमाद की मामा हमेशा अपने शौहर से कहती कि मैं भी यही चाहती हूँ कि हमाद पढ़ लिख कर एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाए। हमारे कौन से ज़्यादा बच्चे हैं जिनकी हमें फ़िक्र हो। अल्लाह ताला ने हमें एक ही बेटे से नवाजा है, तो हम दोनों मिलकर इसको इस तरह की तालीम दिलवा दें ताकि सारी ज़िंदगी इसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उसके पास अच्छी तालीम होगी तो नौकरी के मौके बेशुमार होंगे। हमाद के माँ बाप हमाद के बारे में बहुत से ख्वाब सजाए हुए थे। हमाद ने देखते ही देखते अपनी तालीम की मंजिलें तय कर ली थी। जैसे ही उसने मैट्रिक का इम्तहान पास किया तो मैट्रिक के इम्तहान में हमाद ने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए थे। अब वो चाहता था कि वो लाहौर जाकर अपनी बाकी की तालीम मुकम्मल करे, जबकि उसके माँ बाप मुल्तान के रहने वाले थे। हमाद के माँ बाप हमाद को अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि लाहौर शहर की भीड़ में वो अपने बेटे को अकेला नहीं भेजना चाहते थे। इसी वजह से हमाद के बाबा ने उसे समझाया कि वो मुल्तान में ही दाखिला ले ले और डॉक्टर की डिग्री मुल्तान से ही हासिल करे। लेकिन हमाद इस बात पर बज़िद था कि मैं लाहौर से ही डॉक्टर की डिग्री हासिल करूँगा और फिर हाई स्टडी के लिए बैरून मुल्क जाऊँगा। हमाद के मामा बाबा उसकी ज़िद के आगे हार चुके थे। मैट्रिक का इम्तहान पास करने के बाद हमाद को स्कॉलरशिप का एजाज़ हासिल हुआ था। वो अपने स्कॉलरशिप के बलबूते पर
अपनी अगली स्टडी शुरू कर रहा था। हम्माद अपनी तालीम को लेकर बहुत ही सीरियस था। वो बहुत ही होनहार और सुघड़ लड़का था। उसमें किसी भी किस्म का कोई ऐब नहीं था। वो हमेशा औरतों की इज्जत करता और अपने अच्छे अखलाक की वजह से हम्माद हर दिल अजीज़ भी था। हम्माद के नंबर बहुत अच्छे थे, इसीलिए लाहौर में किसी भी यूनिवर्सिटी में उसे बाआसानी दाखिला मिल सकता था। हम्माद ने लाहौर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और अपनी अगली पढ़ाई को जारी रखते हुए लाहौर के लिए रवाना हो गया। वो शुरू में महीने में 4 दफ़ा मुल्तान अपने माँ बाप को मिलने के लिए चला जाया करता था, लेकिन जैसे जैसे हम्माद अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होता गया वैसे वैसे हम्माद ने मुल्तान जाना कम कर दिया था। अब हम्माद के बाबा और मामा अक्सर हम्माद को मिलने लाहौर आ जाया करते थे। हम्माद वहाँ एक हॉस्टल में रहता था। हम्माद यहाँ पर भी किसी से कम नहीं था। वो हमेशा अपने हर सेमेस्टर में नंबर 1 पर ही आता दिखाई देता, इसीलिए उसकी क्लास की सब लड़कियाँ उस पर जान निछावर करती थीं। हर लड़की उसके नोट्स इस्तेमाल करती और तरह तरह के बहानों से हम्माद से बात करने की कोशिश किया करती थी, मगर हम्माद किसी के साथ भी फ्री नहीं होता था। वो अपने काम से काम रखता और हर एक की मदद करने में पेश होता। हम्माद के ग्रुप में 3 लड़कियां और 4 लड़के शामिल थे। पढ़ाई के बाद वो कुछ वक्त अपने ग्रुप में गुजारा करता। उसी ग्रुप में एक लड़की थी जिसका नाम सबा था। सबा दिल ही दिल में हम्माद को पसंद करने लगी थी। सबा बहुत कम गो थी। उसने हम्माद के ग्रुप को ज्वाइन ही अपने दिल के हाथों मजबूर होकर किया था। सबा पहले ही नज़र में हम्माद से मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन अभी तक उसने किसी के ऊपर भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। कोई भी लड़का या लड़की ये नहीं जानते थे कि सबा दिल ही दिल में हम्माद से मोहब्बत करने लगी है। सबा बहाने से हम्माद के नोट्स इस्तेमाल करती और अक्सर कोई ना कोई सवाल लेकर हम्माद के पास हाजिर हो जाती। हम्माद उसे हर सवाल बहुत अच्छी तरह से समझाने की भरपूर कोशिश करता था। ऐसा नहीं था कि हम्माद सिर्फ सबा को ही समझाया करता था। उसके पास उसके बैच का कोई भी लड़का या लड़की आ जाते तो हम्माद उन्हें भी उतनी ही तवज्जो से समझाया करता था जितनी तवज्जो से वो सबा को समझाता था। हम्माद के दोस्तों ने जब सबा को हम्माद के पास इस तरह आते जाते देखा तो वो लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए कि दाल में कुछ काला है। वो अक्सर हम्माद को सबा का नाम लेकर छेड़ाछाड़ी किया करते, लेकिन हम्माद हमेशा उन्हें समझाता कि बहुत बुरी बात है, किसी भी लड़की को किसी लड़के के साथ जोड़ देना गुनाह है। उस बेचारी के दिल में कुछ हो या ना हो, तुम लोग कह कहकर क्यों उसे बदनाम कर रहे हो। जब हम्माद के दोस्त उसके मुंह से ऐसी बातें सुनते तो वो हम्माद का बहुत मजाक उड़ाते और अक्सर उससे कहते कि अच्छा, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं तो फिर तुम उसे बहन बोल कर दिखाओ। लेकिन हम्माद ऐसा नहीं करता था, हमेशा मुस्कुराकर बात को टाल दिया करता। इससे साफ जाहिर होता था कि हम्माद भी कहीं ना कहीं सबा को पसंद करने लगा था। इससे पहले कि ये बात पूरी यूनिवर्सिटी में फैल जाती, हम्माद ने अपने माँ बाप से सबा के बारे में बात करने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले हम्माद ने सबा की रजामंदी जाना ज़रूरी समझा था। उसने जब मौका पाकर सबा से पूछा कि क्या वो उसे पसंद करती है तो सबा ने शर्माते हुए हाँ में सर हिलाया और हम्माद से कहा कि मैं पहले दिन से ही तुम्हें बहुत पसंद करने लगी थी, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कि मैं तुम्हें खुद बता सकूं। हम्माद उसका जवाब सुनकर खुश हो गया था। उसने भी सबा से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि तुम भी अपने घर में बात चलाओ और मैं भी अपने माँ बाप से बात करूँगा, ताकि हमारी पढ़ाई के दौरान ही हमारा रिश्ता पक्का हो जाए। दोनों बहुत खुश थे। हम्माद इस हफ्ते मुल्तान जाने वाला था। वैसे तो वो हर हफ्ते नहीं जाया करता था, लेकिन इस हफ्ते वो सबा के लिए जा रहा था। वो अपने माँ बाप से सबा के बारे में बात करना चाहता था। जब हम्माद ने अपनी मामा को फ़ोन करके बताया कि मैं मुल्तान आ रहा हूँ, तो उसकी मामा ने उसकी पसंद के सारे खाने तैयार कर रखे थे। वो जैसे ही मुल्तान पहुँचा तो अपने माँ बाप से मिलकर बेहद खुश हुआ था। हम्माद के माँ बाप भी हम्माद पर सदके वारी जा रहे थे।
जैसे ही हमाद घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी खाला और कज़न भी मुल्तान गए हुए थे। हमाद उनसे मिलकर बहुत खुश हुआ था। उसकी खाला उसे बहुत प्यार करती थी। सबने मिलकर खाना खाया और फिर सब बातें करने लगे। तभी हमाद की मामा ने हमाद को बताया कि उसकी खाला अपनी बेटी सारा के लिए हमाद का रिश्ता लेना चाहती हैं। हमाद ने जब ये बात सुनी तो उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वो तो अपना दिल सबा को दे चुका था और अब वो किसी और से शादी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हमाद के चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट अचानक से परेशानी में बदल गई और इस बात को वहाँ बैठे हर बंदे ने महसूस किया। तभी हमाद की खाला ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि कोई परेशानी वाली बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। हमने अभी रिश्ता पक्का नहीं किया, सिर्फ बात ही की है। अगर तुम्हारी नज़र में कोई और है तो कोई भी मसले वाली बात नहीं, तुम हमें अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकते हो। तभी हमाद ने वक्त ज़ाया ना करते हुए अपने मामा बाबा से कह दिया कि मैं यूनिवर्सिटी की एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ जो कि मेरे ही बैच की है। उसका नाम सबा है और मैं सबा के सिलसिले में ही आज यहाँ आया था, मगर मुझे क्या मालूम था कि आप लोगों ने पहले से ही कोई प्रोग्राम बना रखा है। सारा भी किसी और को पसंद करती थी। जब सारा ने हमाद के मुंह से ये अल्फाज सुने तो वो खुशी से झूम उठी और फ़ौरन से पहले हमाद के पास आई और कहने लगी कि मैंने तुम्हें दिल से हमेशा भाई माना है और मेरे दिल की दुआ थी कि तुम सदा मेरे भाई ही रहो, और तुमने तो मेरी परेशानी चुटकियों में हल कर दी। अब चाहकर भी ये लोग हमारी शादी नहीं कर सकते। तुम आज से मेरे पक्के वाले भाई हो। सब लोग हैरान होने के साथ साथ कहकहा लगाकर हंसने लगे और कहने लगे, देख लो बात हम क्या करना चाहते थे और इन बच्चों ने बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हमाद से सबा के बारे में सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमाद की मामा सबा के लिए मान गई थी। हमाद बेहद खुश था। उसने अपनी मामा के हाथ चूमते हुए कहा कि आपका ज़िंदगी भर ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरी मोहब्बत को बग़ैर किसी परेशानी के मेरी झोली में डाल दिया है। हमाद की मामा और बाबा तो आज ही सबा के घर जाना चाहते थे, लेकिन हमाद ने अपने मामा और बाबा से थोड़ा इंतज़ार करने को कहा, क्योंकि अभी हमाद को सबा ने अपने वालिदैन का फ़ैसला नहीं सुनाया था। उसने सुबह सुबह वापस जाना था, इसीलिए उसने अपने घर वालों से इजाज़त लेते हुए सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। सोने का तो एक बहाना ही था, हमाद को फ़ोन पर सबा से बात करनी थी। तभी उसने खुशी खुशी सबा को फ़ोन मिलाया। जैसे ही सबा ने फ़ोन उठाया तो सबा की दिल की धड़कनें तेज़ थीं, क्योंकि सबा नहीं जानती थी कि हमाद के वालिदैन ने क्या जवाब दिया है। तभी हमाद ने सबा को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि मामा बाबा को कोई एतराज़ नहीं। मामा बाबा ने मेरे फैसले की इज्जत रखते हुए शादी के लिए हाँ कर दी है। हमाद की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। जैसे ही सबा ने उसके मुंह से ये खुशखबरी सुनी तो सबा भी खुशी से झूम उठी। फिर अचानक ही सबा के दिमाग में एक शरारत आई। सबा ने शरारती अंदाज में हमाद से कहा कि तुम्हारे तो माँ बाप मान गए हैं, लेकिन हमाद मुझे तुम्हें बताना था कि मेरे माँ बाप इस रिश्ते के लिए बिल्कुल नहीं माने। मेरे माँ बाप मेरा रिश्ता मेरे मामू के बेटे से करना चाहते हैं, और जैसे ही मैंने अपने मामा बाबा से तुम्हारे लिए बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मुझे बहुत बुरी तरह से डांटा और कहा कि अगर तुमने हमाद का नाम भी लिया तो तुम्हें जान से मार देंगे। मैं बहुत परेशान हूँ, तुम कब वापस आ रहे हो? हमाद के पांव तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि हमाद ने कभी भी ऐसा जवाब मिलने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो ज़ारो कतार रोने लगा था और सबा से कहने लगा, ऐसा मत कहो, कैसे भी करके अपने माँ बाप को मनाओ। अगर तुमसे नहीं मनाए जाते तो मुझे बताओ, मैं आकर उनके पाँव पकड़कर तुम्हारा हाथ मांग लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता। मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है। सबा हमाद का ये तमाशा बनाकर खुश हो रही थी। वो देखना चाहती थी कि आखिरकार हमाद सबा से किस कदर मोहब्बत करता है। तभी जब सबा ने देखा कि हमाद बहुत ही ज़्यादा रोने लगा है
तो सबा ने फौरन से पहले हमाद को चुप करवाते हुए कहा कि मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने मामा बाबा से तुम्हारे बारे में बात की तो वो फौरन से पहले मान गए। और सबसे बड़ी बात कि मेरे तो मामू ही नहीं हैं, उनका बेटा कहाँ से आ गया। मैं तो मजाक कर रही थी, मैं देखना चाहती थी कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। सबा ने जब ये बात हमाद को बताई तो उसने गुस्से से फ़ोन बंद करते हुए सबा से कहा कि मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, मैं ना जाने अभी क्या कर जाता। ये हमाद और सबा के दरमियान पहली और शायद आखिरी जंग थी। दोनों के घर वाले उनके रिश्ते के लिए तैयार थे। दोनों के घर वालों ने मिलकर उनकी बात पक्की कर दी थी। अब सबा और हमाद एक ही यूनिवर्सिटी में एक साथ तालीम हासिल करने लगे थे। दोनों ही डॉक्टर बन रहे थे और एक साथ ही एक मुकद्दस रिश्ते में बंधने वाले थे। हमाद और सबा के पेपर सर पर थे। अब दोनों ने दिल लगाकर अपने पेपर्स की तैयारी शुरू की। दोनों के पेपर बहुत अच्छे हुए। दोनों अपने रिजल्ट के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दूसरी तरफ हमाद के माँ बाप और सबा के माँ बाप ने उन दोनों की इंगेजमेंट कर दी थी, क्योंकि अब रिजल्ट के बाद दोनों हाउस जॉब करने वाले थे, इसलिए दोनों बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते। यही वजह थी कि उनके घर वालों ने उनकी मंगनी कर दी थी। हाउस जॉब के दौरान ही दोनों की शादी होने वाली थी। हमाद और सबा बहुत ही अच्छे नंबरों से कामयाब हुए। हमाद तो बेहद अच्छे नंबर लेकर डॉक्टर बन चुका था। अब हमाद को हाउस जॉब लाहौर ही करनी थी। सबा पहले ही लाहौर की रहने वाली थी, इसीलिए सबा की भी हाउस जॉब लाहौर में ही लगा दी गई। हमाद एक सर्जन बनना चाहता था। वह पहले से भी ज़्यादा बिजी हो गया था। उसे सर खुजाने का भी टाइम नहीं मिलता था। यही हाल सबा का भी था। दोनों ज़ोरों शोर से अपनी ड्यूटी पर तवज्जो दे रहे थे। हमाद अब महीने में 1 या 2 दफ़ा अपने माँ बाबा से मिलने जाया करता। हमाद के माँ बाबा ने यही फैसला किया कि शादी के बाद हमाद को लाहौर में ही सेटल कर दिया जाए, ताकि रोज़ रोज़ आने जाने का मसला ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमाद की ड्यूटी वहीं लगनी थी। तभी हमाद के बाबा ने उसको एक गाड़ी भी लेकर दी थी, और घर पहले से ही लाहौर में हमाद के बाबा का था, क्योंकि हमाद का ददियाल और ननियाल दोनों ही लाहौर के रहने वाले थे। हमाद अब उसी घर में रहा करता। उसके मामा बाबा भी कुछ दिन के लिए लाहौर आ जाया करते और कुछ दिन अपने बेटे के साथ गुजारकर फिर वापस मुल्तान चले जाया करते थे। हमाद बहुत खुश था। उसने अपनी पहली कमाई से अपने माँ बाप और सबा के लिए शॉपिंग की थी। अब उसका एक ही मकसद था, शादी के लिए तैयारी करना। हमाद ने अपने बाबा से साफ कह दिया था कि शादी के तमाम अखराजात वो खुद उठाएगा। आज हमाद बहुत थका हुआ था, क्योंकि उसने 32 घंटे की ड्यूटी देकर आज तकरीबन 1.5 दिन बाद अपने घर जाना था। जैसे ही हमाद ने सबा से मिलकर उसे घर जाने के बारे में बताया, तो सबा ने हमाद से कहा कि मौसम तो बहुत ख़राब लग रहा है। हमाद बहुत थका हुआ था और घर जाकर ही आराम करना चाहता था। हमाद ने सबा से इजाज़त ली और अल्लाह हाफिज़ बोलते हुए अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही हमाद अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल से घर के लिए रवाना होने लगा, तो मौसम अचानक से तेज़ तूफ़ानी बारिश में तब्दील हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाता अपने घर की तरफ जाने लगा था। हमाद को कुछ ग्रॉसरी करनी थी, क्योंकि घर में कुछ ज़रूरत का सामान चाहिए था। उसने एक मार्केट में गाड़ी रोककर सब ज़रूरत का सामान ख़रीद लिया। जैसे ही हमाद सामान डिग्गी में रखकर गाड़ी में बैठने लगा, तो हमाद के फ़ोन पर घंटी बजी। उसने अपना मोबाइल निकाला तो देखा कि उसकी मामा की कॉल थी। वो अपनी मामा से बात करने लगा था। हमाद की माँ हमाद से उसकी शादी के बारे में उसका इरादा जानना चाह रही थी। हमाद ने अपनी माँ से कहा कि आप लोग लाहौर आकर सबा के घर वालों से मिलकर बात कर लें, फिर जो बेहतर लगेगा कर लीजिएगा। मामा से बात करने के बाद हमाद ने अपने बाबा से भी कुछ देर बात की और फिर अपनी मसरूफियत के बारे में अपने बाबा को सब बताते हुए कहने लगा कि मैं घर जाकर फ्रेश होकर आपसे बात करता हूँ। अभी हमाद ने कॉल काटी ही थी कि अचानक से हमाद ने गाड़ी की ब्रेक लगाई, क्योंकि सड़क के दरमियान में हमाद को कुछ पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था।
लेकिन वो क्या था? तूफानी बारिश की वजह से हमाद को गाड़ी में बैठकर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो जल्दी से गाड़ी से उतरा और जाकर गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही हमाद की नज़र सड़क पर पड़ी तो वो ये देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि सड़क पर एक हामला खातून बेहोश पड़ी थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अस्पताल काफ़ी दूर था और हमाद आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर चुका था। तभी हमाद ने उस हामला लड़की को उठाते हुए अपनी गाड़ी में डालते हुए अपने घर ले जाने का फैसला किया। हमाद उसे अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही उसे बिस्तर पर लेटाया और कुछ ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल करते हुए उसे गहरी नींद सोने दिया और ख़ुद अपने कमरे में जाकर सो गया। हमाद आज इस कदर थका हुआ था कि उसे अपने मामा और बाबा से बात करने का वक्त ही ना मिला। कुछ वो उस हामला लड़की को लेकर बेहद परेशान था। वो बार बार उसके बारे में सोच रहा था कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो लड़की इस हालत में पड़ी हुई मिली। हमाद दिल में सोच रहा था कि कहीं ये पुलिस केस ना हो, लेकिन फिर हमाद ने इंसानियत के नाते और अपने पेशे की वजह से उस लड़की को एक रात के लिए पनाह देना मुनासिब समझा। सुबह हुई तो वो लड़की होश में आ चुकी थी। लड़की ने जैसे ही खुद को एक घर में देखा तो हैरान और परेशान होने लगी। अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके हवास कायम नहीं थे। वो हैरान होकर हमाद की तरफ देखने लगी। हमाद सबा के साथ बात करने में मसरूफ था। तभी वो लड़की होश में आते ही कहने लगी कि मेरे होने वाले बच्चे के बाप तुम हो। हमाद ने उसे हैरान होकर देखते हुए कहा कि पागल हो गई हो क्या? होश में तो हो, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैंने आज से पहले तुम्हें कभी देखा ही नहीं, और तुम हो कि मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रही हो। सबा की कॉल चल रही थी। हमाद बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो मुसलसल गुस्से से उसे देखे जा रहा था। हमाद उस लड़की की बात सुनकर तो आग बगोला होने लगा था कि मैंने तुम्हारे साथ नेकी की और तुम मेरे ही गले पड़ रही हो। ये सब बातें सबा भी सुन रही थी। हमाद ने उस लड़की को कहा कि अच्छा था तुम बीच सड़क में ही पड़ी रहती, वही मर जाती। ना मैं तुम्हारे साथ नेकी करता और ना तुम इतना घटिया इल्ज़ाम मुझ पर लगाती। वो गुस्से से मुसलसल बोले जा रहा था। हमाद को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब उस लड़की के साथ क्या करे। तभी उसने जैसे ही अपने कान को फ़ोन लगाया तो फ़ोन कट चुका था। हमाद परेशान होकर दोबारा फ़ोन करने लगा तो सबा ने कॉल काट दी। हमाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तभी हमाद ने उसे मैसेज किया तो सबा ने उसके मैसेज का भी कोई जवाब ना दिया। हमाद ये समझ रहा था कि सबा ने सारी बात सुन ली होगी और इसी वजह से सबा अब उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रही। हमाद को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हमाद और सबा का रिश्ता टूटने के करीब था। वो अपने रिश्ते के बारे में ऐसा सोच कर ही हिल जाता था, क्योंकि वो सबा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। हमाद सबा के बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि मुझसे क्या गलती हो गई। मैंने नेकी करते करते इस मुसीबत को अपने गले में डाल लिया है। हमाद को उसका गुनाह अपने सर पर पड़ता महसूस हो रहा था। वो खुद को बहुत बुरी तरह से कोस रहा था और दिल में सोच रहा था कि मैंने अपना रिश्ता ख़राब करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वो मुसलसल खुद को कोसते जा रहा था। तभी हमाद को बेइंतहा गुस्सा आया। उसने गुस्से के साथ उस लड़की का बाजू पकड़कर खींचते हुए उसे घर से बाहर निकालने का सोचा। जैसे ही हमाद ने उस लड़की को बाहर निकालना चाहा तो होश उड़ गए। जब हमाद ने घर का दरवाज़ा खोला और घर के दरवाजे पर खड़े अपने माँ बाप को देखा, हमाद का रंग उड़ चुका था। उसने फौरन से पहले उस लड़की का हाथ छोड़ दिया था, जिसे वो घसीटते हुए दरवाजे तक ले आया था। हमाद की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। तभी उसकी ऐसी हालत देखते हुए हमाद की माँ ने कहा कि सब खैरियत तो है और ये सब क्या हो रहा है। हमाद की माँ परेशान हाल उससे सवाल कर रही थी कि तभी हमाद के माँ बाप की नज़र उस हामला लड़की पर पड़ी तो हमाद के माँ बाप की नज़रों में एक सवाल था जिसका जवाब इस वक्त हमाद के पास भी नहीं था। वो उसे घसीटता हुआ दरवाजे तक लेकर जा रहा था। तभी हमाद की माँ ने उसे मना किया कि इसकी हालत देखो, तुम ये क्या जुल्म कमा रहे हो? तुम डॉक्टर हो के किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो?
हमाद वहीं ज़मीन पर बैठ गया और रोने लगा और अपनी माँ से कहने लगा कि इस लड़की की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। इस लड़की की वजह से मेरी सबा मुझसे दूर चली गई। हमाद के माँ बाप को कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। तभी उसकी माँ ने उसको पानी पिलाते हुए सोफे पर बिठाया और हमाद से कहने लगी, पहले चुप हो जाओ और तसल्ली से पानी पियो। सबा कहीं नहीं जाती, सबा यही है। तभी हमाद की माँ ने उस हामला लड़की से पूछा कि ये बच्चा किसका है। वो अपने होशो हवास में नहीं थी, उसके हवास कायम नहीं थे। वो लड़की हैरान होकर हमाद की माँ की तरफ देखने लगी। इससे पहले कि हमाद की माँ उसे मजीद कोई सवाल पूछती, देखते ही देखते वो लड़की फिर से बेहोश हो गई। हमाद की माँ ने अपने शौहर की मदद से लड़की को उठाकर अंदर बिस्तर पर लेटाया और फिर हमाद के पास आए ताकि तमाम माजरा मालूम कर सके। तभी अचानक दरवाज़ा नॉक हुआ और दरवाज़ा खोलने पर मालूम हुआ कि दरवाजे पर सबा है। सबा दौड़ती हुई अंदर आई और हमाद के पास आकर बैठ गई और हमाद से कहने लगी, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? जब हमाद ने सबा को अपने करीब देखा तो फिर से रोने लगा और सबा से कहने लगा, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं गुनहगार हूँ? क्या तुम भी मुझे कसूरवार समझती हो? सबा मोहब्बत भरी नज़रों से हमाद के चेहरे की तरफ देख रही थी और मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है? हमाद ने अपने दोनों हाथों में सबा का हाथ थामते हुए उससे कहा, मैं बेगुनाह हूँ। ये लड़की मुझ पर सरासर इल्ज़ाम लगा रही है। मुझे नहीं पता कि ये बच्चा किसका है और मैं नहीं जानता कि ये लड़की कौन है। मैं तो आज इसको पहली दफ़ा मिला हूँ। सबा ने कहा कि तसल्ली रखो, मुझे सब ठीक से बताओ कि सब हुआ क्या था। तभी हमाद ने बताया कि ये लड़की मुझे अस्पताल से कुछ फासले पर सड़क पर बेहोश मिली थी। अस्पताल दूर था और इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। इसी वजह से मैंने उसकी भलाई का सोचा और उसे अपने घर ले आया और ये लड़की मुझ पर ही इतना घटिया और गंदा इल्ज़ाम लगा रही है। सबा ने हमाद से पूछा कि वो लड़की कहाँ पर है। हमाद ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फिर से बेहोश हो गई है और मामा ने उसे कमरे में लिटा दिया है। सबा फौरन से पहले दौड़ती हुई कमरे की तरफ गई। सबा के दिमाग में कुछ चल रहा था। जैसे ही सबा ने कमरे में जाकर देखा तो सबा ने तसल्ली से सुकून का सांस लेते हुए बाहर आने लगी। सबा जैसे ही कमरे से बाहर आई तो उसने आकर हमाद को तसल्ली देते हुए कहा कि परेशान मत हो। सबा ने हमाद से कहा, मैं इस लड़की को जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये लड़की कौन है। हमाद ने हैरान होते हुए सबा से कहा कि तुम कैसे जानती हो इस लड़की को? सबा ने कहा कि मैंने कुछ देर पहले इसकी तस्वीर अस्पताल में देखी थी। हमाद बहुत हैरान होकर सबा को देखने लगा। सबा ने बताया कि ये लड़की अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी है और ये हमारे ही अस्पताल से भागी हुई लड़की है। ये लड़की कंवारी है और इसके साथ किसी ने बहुत बड़ा जुल्म किया था। उसकी इस हालत के जिम्मेदार तुम नहीं बल्कि कोई और हैवान सिफ्त इंसान था जिसने इसकी इज्जत ख़राब की और इसको इस हालत तक पहुंचाया। सबा ने बताया कि उस लड़की की हालत बहुत ख़राब थी तो अस्पताल के करीब के इलाके में ही कुछ लोग चंद दिन पहले उसे हमारे अस्पताल लेकर आए थे। उन लोगों का कहना था कि ये लड़की पागल है और हामला है। न जाने ये कहाँ से भूली भटकी हमारे मोहल्ले में आ गई है। अब नौजवान लड़के और बच्चे इसे तंग करते हैं। इसकी हालत ऐसी नहीं कि हम इसे कहीं और भेज सकें, इसलिए हमने सोचा हम इसे अस्पताल में दाखिल करवा देते हैं। फिर आपको जैसा मुनासिब लगे आप इसका हल निकाल लीजिएगा। और इस लड़की को अस्पताल में दाखिल करने वाली हमारे हॉस्पिटल की सबसे काबिल डॉक्टर किश्वर हैं। डॉक्टर किश्वर दिमाग की डॉक्टर थी। उसके कहने पर उस नौजवान लड़की को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया था और ये लड़की कल रात से अस्पताल से गायब थी। सबा ने बताया कि जब मैं तुम्हारे साथ बात कर रही थी तो तभी वार्ड बॉय उस लड़की की तस्वीर लेकर पूरे हॉस्पिटल में इसे तलाश कर रहा था। जब मैंने इस वार्ड बॉय से गुमशुदा पेशेंट की हालत के बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वो एक लड़की थी जो कि हामला थी। तभी मेरे जहन में तुम्हारी बात आई कि तुमने भी अभी अभी मुझे एक ऐसी लड़की के बारे में बताया था। इसलिए मैं कॉल काटते ही सीधा
तुम से मिलने घर चली आई कि जाकर देखती हूँ, इसलिए मैं फौरन से पहले घर चली आई थी। अब हमाद काफ़ी तसल्ली में था। उसके ऊपर जो परेशानी का गलबा था वो अब ख़त्म हो चुका था। हमाद ने कमरे में जाकर देखा तो वो लड़की होश में आ चुकी थी। सब लोग कमरे में जमा हो गए। उस लड़की ने जैसे ही हमाद के बाबा की तरफ नज़र डाली तो खौफजदा होते हुए उसके बाबा से कहने लगी कि इस बच्चे के बाप तुम हो। सब लोग ये बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे कि इस लड़की का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। तभी हमाद और सबा ने प्यार और मोहब्बत से उसे टैकल करते हुए हॉस्पिटल ले जाने की। जैसे ही हमाद और सबा उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर किश्वर को इत्तला देकर बुला लिया गया था। डॉक्टर के आने पर हमाद ने डॉक्टर से कहा कि ये मेरी जानने वाली हैं, इसके इलाज पर जितना खर्च आएगा वो सब मैं अदा करूँगा। आप बस इसका और इसके बच्चे का ख्याल रखिएगा और मुझे जल्द खुशखबरी सुनाइएगा कि ये लड़की सेहतयाब हो गई है। सबा ने और हमाद ने मिलकर उस लड़की की जिम्मेदारी ले ली थी। अब डॉक्टर किश्वर उस हामला लड़की का इलाज करने लगी थी। इलाज के दौरान डॉक्टर किश्वर को बहुत सी बातों का पता चला था और उसने वो सारी बातें हमाद और सबा से डिस्कस की थी। तभी हमाद और सबा ने कुछ ऐसी बातों को जानने की कोशिश की जिनसे उस लड़की के घर का पता चल सकता था। हमाद और सबा रोज़ाना उस लड़की को मिलने जाते और काफ़ी टाइम उसके साथ गुजारते थे ताकि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। उस लड़की ने अपना नाम सोबिया बताया था और कहा कि मैं गुजरात शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ। उसके बताए हुए पते पर हमाद और सबा पहुँच गए थे। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि सोबिया के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और सोबिया का एक ही भाई था जो बैरूने मुल्क रहता था। सोबिया की भाभी का रवैया सोबिया के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। यही वजह थी कि सोबिया की भाभी उस पर जुल्म ढायक रखती थी। सोबिया की भाभी का सलूक उसके साथ बहुत बुरा था। मोहल्ले वालों ने बताया कि सोबिया की भाभी के भाई ने सोबिया के साथ बदसलूकी की थी और फिर सोबिया पर ही इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया गया। सोबिया की भाभी ने अपने भाई के साथ मिलकर इस पर बहुत तशद्दुद किया। सोबिया उसके दिए हुए हर जुल्म को बर्दाश्त करती रही। फिर जब सोबिया को पता चला कि वो उम्मीद से है तो उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बहुत अरसे तक अपने भाई के आने का इंतज़ार करती रही, लेकिन उसकी भाभी ने उसे मोहल्ले में ही टिकने नहीं दिया था। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और यही वजह थी कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी। मोहल्ले वालों ने बताया कि मोहल्ले में सोबिया कभी सड़क के किसी कोने पर पड़ी होती और कभी किसी कोने पर। उसके बावजूद भी उसकी भाभी ने उसको यहाँ पर भी रहने नहीं दिया था। उसकी भाभी अपने भाई के साथ मिलकर इसका बहुत बुरा हाल करती थी। सोबिया क्योंकि अब सोच समझ नहीं रखती थी, उसका दिमाग पहले की तरह काम नहीं करता था। मोहल्ले वालों के लाख समझाने पर भी जब सोबिया की भाभी अपनी हरकतों से बाज ना आई तो फिर एक दिन अचानक न जाने सोबिया यहाँ से कहाँ गायब हो गई और दोबारा पलटकर कभी यहाँ नहीं आई। हम सब तो समझते थे कि वो अब इस दुनिया में नहीं होगी। हमाद और सबा ने सोबिया के भाई से मिलने की कोशिश की तो पता चला कि सोबिया का भाई बैरूने मुल्क ही है। मोहल्ले वालों से सोबिया के भाई का फ़ोन नंबर लेकर हमाद ने जब उसके साथ राब्ता किया और उसे उसकी बहन के बारे में बताया तो वो ज़ारो कतार रोने लगा। वो अपनी बीवी की चालाकियों से वाकिफ़ तो था, लेकिन उसकी बीवी इस हद तक गिर जाएगी इस बात का उसे इल्म नहीं था। सोबिया के भाई ने हमाद से रिक्वेस्ट की कि सोबिया का ध्यान रखा जाए और उसने हमाद से कहा कि मैं जल्द ही पहली फुर्सत में पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा। हमाद ने ऐसा ही किया। सोबिया के भाई को 15 दिन बाद छुट्टी मिलनी थी और सोबिया का इलाज मुसलसल होता रहा। तभी हमाद को डॉक्टर किश्वर ने बताया कि सोबिया अब बिल्कुल ठीक होने लगी है, वो पहले से काफ़ी बेहतर है। हमाद की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा था। हमाद ने सोबिया के साथ दोस्ताना माहौल बना रखा था, इसलिए सोबिया हर बात हमाद से और सबा से कर लेती थी। उन्हीं दिनों सोबिया ने एक बहुत ही खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। सोबिया का भाई भी पाकिस्तान आ चुका था। उसने जब अपनी बहन की हालत को देखा
تو وہ خون کے آنسو رونے لگا۔ اس نے حماد کا اور صبا کا شکریہ ادا کیا اور اپنی بہن کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ حماد اور صبا بھی ان دونوں کے ساتھ بچے کو لے کر گئے تھے۔ گھر پہنچ کر صوبیہ کے بھائی نے اپنی بیوی کے سب کرتوتوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تمہارا بھائی میری بہن اور اس کے بچے کو قبول کرے گا تو تم اس گھر میں رہو گی، اور اگر وہ اسے قبول نہیں کرے گا تو تم بھی میری طرف سے فارغ ہو۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے فوراً سے پہلے صوبیہ کا نکاح اپنے بھائی سے کروا دیا۔ حماد اور صبا کی کوشش سے آج صوبیہ اپنے گھر میں آباد ہے۔ صوبیہ کی بھابھی اور اس کے بھائی نے سب سے معافی مانگی اور دوبارہ پلٹ کر کبھی صوبیہ کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا۔ آج صوبیہ اپنے بچے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔